security consultant at Catalyst Security. And in today's talk, we will be discussing a little bit about Catalyst group of companies and the core services we provide in our company. And then we will be moving on towards what exactly is cybersecurity, what technologies are emerging these days, and what technologies are taking over the world right now, and what are the latest cyber threats and cyber attacks that are being targeted to those technologies, and what are the implications of these technologies on common human lives. What are the threat sources? What are the cybersecurity challenges that we may face? Because why are these cyber threat actors being able to actually exploit these technologies, and how can we prevent them? And then we will be moving on towards the question and answer session. Without further ado, Catalyc is basically a group of companies. We are multiple company group of multiple companies. Catalyc Consulting is mostly towards IT security and consultation and training organizations for all sorts of compliance and needs for their international standards. Texel, which is a hardcore software development company. Then we have Urban Galleria, that is an online e-commerce digital store. Then we have Strategic Alliance, that is also a digital branding or consultation agency. Then we have Ricky, which is basically a certification body and has been registered in multiple countries like US and UK and multiple other countries. In fact, 23 operational. We have our headquarters in 23 operational countries right now. Then we have Tetlec Technologies, that is also a software development house, and that is more focused towards the e-commerce side of application development. And then we have taken the consultation service and ISO implementation and training organization. We have been recognized at multiple platforms, especially at we have been awarded with prestigious Pasha Act Awards in 2013 and CEO Excellence Award. That is again a largest IT consultation award that was given to our company. Our top customers from Pakistan are Pakistan and international customers include from government sector. They are FPR, we have Nadra, we have Soy Northern Gas, we have SCCP, we have Dubai Customs, we have ARTCI from Africa. And in banking sectors, we have State Bank of Pakistan, Bank Al Habib, you name it, we have it, UBL, Silk Bank, Telenor Microfinance, MCB, and many more. Information from IT sector, we have NetSol as our client, we have Systems Limited as our client, we have Interactive Group, we have Abacus, and in telecom sector, we have Zong, Telenor, Ufone, Alfila Insurance, Alfila Atlas Group. These are some of the logos of our local national clients, and these are some of the logos of our international clients. Okay. Just to be sure, am I audible properly? Yes, sir. Okay, perfect. Thank you. So our core services are compliance and consultation, management system certification, third-party assessment, education and training, and managed security services. So compliance and consultation services include complete suite of ISO certifications from ISO 9001 to ISO 27001, and we also provide consultation for GDPR standards implementation, CMMI all levels, CMMC, HIPAA compliance, NIST framework, and also we are USA accredited certification. We also perform certification audits for all of these. ISO 27001, 9001, 14001, and many more. So they're all listed here. Okay, and information security perspective, we also security assessment, and they include red teaming, compromise assessment, vulnerability assessment, penetration testing, internal and external both. Infrastructure security assessment, application security assessment, information security audits, secure code audits, secure architecture audits, data center security review, physical security review, and the risk assessment.
From education perspective and trainings perspective, we perform multiple trainings in multiple domains, from PCI DSS to PADSS, ISO standards. We also have a very comprehensive hands-on lab-based sessions for malware analysis, for vulnerability assessment and penetration testing related courses, for compromise assessment, for secure software development lifecycle. We also perform specialized courses like CISA, CISSP, CISM, CHFI, OSCP. We give trainings to all of them, and also COBIT 5 as well. We have managed security services where we provide 24/7, 365 days a year, complete security monitoring services ranging from firewall, completely managed firewalls, intrusion detection systems, virtual private networks, authentication services, vulnerability protection services, managed antivirus services, web application firewalls, network access controls, bandwidth management solutions, data leakage prevention, and email protection. We have a team which is 24/7 deployed at our office, monitoring our clients and making sure that they are completely secure from any sort of any incident from cyber attack perspective. And for that, we have we have established a complete SOC within our organization, and we have multiple clients with us which are being monitored 24/7. And that is a brief introduction about our company. So moving ahead, what is cybersecurity and what are the threats related to it? And let's get started with the action stuff. Okay, so cybersecurity basically is the information, is a process of actually जिसमें हम लोग साइबर थ्रेट्स और वनरेबिलिटीज को कैटर करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि हम उस पर्सपेक्टिव से देखें कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिनके थ्रू एक साइबर अटैकर जो है वो अटैक परफॉर्म कर सकता है, और हम उन एस्पेक्ट्स को किस तरह से कैटर ऑन कर सकते हैं, उसको उन एस्पेक्ट्स को किस तरह से आइडेंटिफाई करने के बाद मैनुअली पैच कर सकते हैं कि वहाँ से अटैकर अटैक ना कर सके. बिकॉज एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सिक्योरिटी है, इट इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? फ्रॉम दैट आई मीन इज़ कि एक डिफेंसिव पर्सपेक्टिव से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी कंट्री को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करने के लिए प्रॉपर्ली बहुत सारे एंड पॉइंट्स को सिक्योर करना है. हम इस एक ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से हम एक छोटे से कमरे की एग्जांपल लेते हैं. एक कमरे के अंदर अगर आप एक मल्टीपल डोर्स हैं, मल्टीपल विंडोज़ हैं, और उस कमरे को आपने सिक्योर करना है कि बाहर से कोई अनऑथराइज्ड बंदा, कोई अननोन किस्म का बंदा उस कमरे के अंदर ना आ सके. तो आपको उस कमरे को हर पर्सपेक्टिव से देखना होगा कि क्या इसके अंदर जो खिड़कियां लगी हुई हैं इनको तोड़ के तो कोई अंदर नहीं आ सकता. क्या इस कमरे में जो दरवाज़ा लगा हुआ है, क्या इसको तोड़ के तो कोई नहीं आ सकता. क्या जो इस दरवाजे के ऊपर ताला लगा हुआ है वो ताला कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या वो किसी छोटी सी आम सादी चाबी से तो नहीं खुल सकता, क्या वो हल्का सी किसी हैमरिंग से तो नहीं टूट सकता. आपको एज फ्रॉम इनसाइड डिफेंसिव पर्सपेक्टिव आपको ये तमाम चीज़ें कैटर ऑन करनी है. आपको ये तमाम चीज़ें देखनी है कि कौन कौन से मेरे इस रूम के अंदर वीक पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू कोई अटैकर अटैक कर सकता है. कोई इम्पोस्टर तो नहीं आ सकता. फॉर एग्जांपल, उस रूम के अंदर मिस्टर हमज़ा को जाने की इजाज़त है, तो कोई और बंदा आके कहे कि जी आई एम मिस्टर हमज़ा, सो लेट मी इन. सो व्हाट इफ देयर आर सर्टेन चेक्स एंड बैलेंसेस कि कोई इम्पोस्टर को चेक कर रहा है, उसको पकड़ रहा है. सो दिस इज़ व्हाट द प्रॉब्लम्स in organization faces when it comes to its securing its infrastructure. लेकिन अटैकर के पर्सपेक्टिव से अगर उसको अटैक करना है तो उसको सिर्फ और सिर्फ उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में एक वीक लिंक ढूंढना है. उसको किसी खिड़की में वो वीक लिंक मिल जाता है, वो वीक पॉइंट मिल जाता है, उसको किसी दरवाजे में वो वीक पॉइंट मिल जाता है, उसको ऑथराइजेशन मैकेनिज्म में वो वीक पॉइंट मिल जाता है.
तो अल्टीमेटली उन तमाम चीज़ों में से सिर्फ एक प्रॉब्लम को देख के अटैकर जो है वो इस कमरे के अंदर आ सकता है. सेम गोज फॉर द एक्सक्यूज. तो इम्पोस्टर के पर्सपेक्टिव से, अटैकर के पर्सपेक्टिव से उसको सिर्फ एक वीक पॉइंट चाहिए इस कमरे के अंदर घुसने के लिए. सिमिलरली एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने साइबर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करने के लिए इसी तरह के तमाम एंड पॉइंट्स को हर वक्त देखते रहना ज़रूरी है. और उनका डिफेंसिव टीम का काम डेफिनेटली ऑफेंसिव टीम से ज़्यादा मुश्किल इसलिए है क्योंकि उनको इन तमाम वनरेबल पोजीशंस को, पॉइंट्स को हर टाइम पे केटर करना ज़रूरी है. अदरवाइज अटैकर जो है वो किसी एक ना एक मेथड से अल्टीमेटली इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर घुस जाएगा. Then there is the other common keyword that is being used, that is information security. So information security भी तकरीबन उसी perspective में उसके umbrella के अंदर ही आती है जिसमें हम कहते हैं कि basically एक organization अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से सिक्योर करे कि जो उसकी प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन है, उसकी ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन है, वो लीक आउट ना हो रही हो. सो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज एक्चुअली सबसेट ऑफ साइबर सिक्योरिटी. What are the emerging technologies as of right now? We all know आज की दुनिया basically artificial intelligence, machine learning, automation and virtualization के related इर्द गिर्द घूम रही है. In fact, virtualization एक वो टेक्नोलॉजी है जिसने in general हमारी दुनिया को बदल के रख दिया है. We are now able to utilize our computation power to our maximum. हम लोग एक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए मल्टीपल उनका ऑपरेटिंग सिस्टम्स चला सकते हैं. हम एक कंप्यूटर की जो रिसोर्सेज हैं उसको डिवाइड करके मल्टीपल कंप्यूटर्स चला सकते हैं. एंड वर्चुअलाइजेशन इज समथिंग दैट इज एक्चुअली पावरिंग द होल इंफ्रास्ट्रक्चर, द होल मेजर बिजनेसेस. जैसे कि हम अगर बात करें प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस लाइक डिजिटल ओशन जैसी सर्विसेज की बात करें जो कि आपको पूरे कंप्यूटर्स हैंड ओवर कर देते हैं फॉर एनी सॉर्ट ऑफ पर्पस. तो उस तरह की जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं वो बेसिकली वर्चुअलाइजेशन की टेक्नोलॉजी के ऊपर ही चल रहे हैं. देन वी हैव न्यू कमिंग सेल्फ ड्राइविंग कार्स, स्मार्ट कार्स हैं, ऑटोमेटिक डिटेक्शन. आप सिर्फ अपना डेस्टिनेशन बता देंगे उनको और वहाँ तक आपको पहुँचा देंगी. देन वी हैव स्मार्ट सिटीज़. हाँ, जो हम इवन स्मार्ट सिटी, सेफ सिटी प्रोग्राम्स, हम कॉमनली इनको ये नाम हम सुनते हैं. इवन इनफैक्ट लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, even other cities in Punjab are becoming safe, coming under the umbrella of Safe City program by our government. So all of these things are very well connected, and I'll tell you what are the problems in it, in these types of things in a bit. Then we have blockchain technology. ब्लॉकचेन के ऊपर आपने बहुत कॉमनली सुना होगा क्रिप्टो करेंसीज जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह, इनकी एक्सचेंज होती है. सो ब्लॉकचेन इज अनदर an extraordinary and very interesting technology. Then we have big data, then we have Internet of Things, and also we have cloud computing and quantum computing. So these are all the revolutionizing type of technologies that we are looking at right now in this world. We are seeing them in our daily lives. हम अपने मोबाइल फ़ोन को ओपन करते हैं और हम लोग गूगल मैप्स की एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, अपनी डेस्टिनेशन उसमें एंटर करते हैं, तो हमें वो कंप्लीट पाथ जो वो दिखाता है कि आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने के लिए इतने राइट टर्न्स, इतने लेफ्ट टर्न्स लेने. इट इज़ ऑल पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग. सिमिलरली वो किस तरह से इस चीज़ को केटर आउट कर रहा है कि कौन सी रोड इस टाइम पे ब्लॉक है और कौन सी रोड आपके लिए आपको पहुंचा देगी और कौन सी रोड आपको कौन सी पाथ आप लेंगे तो वो आपको देर से पहुंचाएगा. दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द बिग डेटा दैट हैज़ बीन कलेक्टेड ओवर टाइम बाय गूगल इटसेल्फ ऑन पीपल. एंड आई वुड रिक्वेस्ट अगर आप लोग माइक्स अपने म्यूट कर लें तो थोड़ा सा आसान रहेगा मेरे लिए. थैंक यू. So that is all results of big data that has been collected over time.
लेकिन ये जो बिग डेटा जो कलेक्ट किया गया है गूगल के थ्रू इन तमाम मोबाइल फ़ोन से, जिन जो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स हैं, ओवर पैसेज ऑफ मल्टीपल ईयर्स, इस के बारे में एक क्वेश्चन सिंपल सा ये है, क्या सिर्फ यही डेटा कलेक्ट किया जा रहा है कि क्या आप इस स्पेसिफिक रोड के ऊपर किस स्पीड में गुजर रहे हैं? ऐसा हरगिज़ नहीं है। हम लोग अब बहुत ओवरली स्मार्ट वर्ल्ड के अंदर रहते हैं, जहाँ पे हमारे हर टाइम हमारे कलाइयों पे स्मार्ट वॉचेस हैं, हमारे जेब में स्मार्टफोन्स हैं। अब तो दुनिया स्मार्ट क्लोथ्स की तरफ आती जा रही है। We are continuously producing data about ourselves, data about our bodies, हमारी हार्ट रेट क्या है, हमारा ऑक्सीजन लेवल क्या है, हमारा ब्लड प्रेशर क्या है, हाउ मच डू वी स्लीप, and not just sleep, how much do we deep sleep and how much do we light sleep and how much do we keep awake, हम कितने स्टेप्स लेते हैं, हम क्या करते हैं, हम कितनी स्पीड में चल रहे हैं, हमारी ओरिएंटेशन क्या है, हम इस टाइम पे किस दुनिया के किस पॉइंट पे मौजूद हैं। इनफैक्ट आपने नोटिस किया होगा, आप किसी दुकान में जाएं और बाहर आएँ तो आपको गूगल मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर नोटिफिकेशन आती है, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एट दिस एंड दिस स्टोर। सो वी आर क्रिएटिंग दिस मच डेटा एंड दैट डेटा इज समहाउ प्रॉब्लमैटिक इस सेंस में, दैट प्रॉब्लमैटिक इस सेंस में कि हमारी प्राइवेसी कहाँ पे है। नाउ द क्वेश्चन इज, ये जितना भी डेटा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये डेटा ऑफ कोर्स गूगल के पास जा रहे हैं। नाउ वी थिंक द गूगल इज अ गुड गाय, Microsoft is a good guy, Facebook is a good guy, Twitter is a good guy. But what if somehow, someday, they turned out to be a bad guy? This is where the problem starts. This is where the privacy hits. Privacy के concerns यहाँ पे शुरू होते हैं, और इन तमाम चीज़ों के ऊपर with passage of time they have produced machine learning models, they have produced very efficient artificial intelligence models, जो कि इस तमाम डेटा को स्क्रूटनाइज करके इसमें से स्पेसिफिकली ना सिर्फ आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, बल्कि ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं कि आप किससे मिलते हैं, आप किसके पास ओकेजनली जाते हैं, आप किस लोकेशन पर जाते हैं। इफ़ आई डोंट नो आप में से किसी ने इस चीज़ को फेस किया हो, लेकिन मुझे इस तरह की नोटिफिकेशन आ जाती है कि ये आप इस जगह पे बहुत फ्रीक्वेंटली जा रहे हैं, तो ये मार्क कीजिए कि ये आपका घर है या आपका ऑफिस प्लेस है। इस तरह की नोटिफिकेशन भी हमें अक्सर को देखने को मिलती है। सो दे हैव वेरी एफिशिएंटली मेड machine learning models, the artificial intelligence, to ultimately आपके बारे में privacy concerns, आपके बारे में exact आपकी image उनको बहुत clearly with one click they can get to know कि यार मिस्टर सो एंड सो क्या करता है, क्या सोचता है, कहाँ जाता है, किन से मिलता है, कौन फैमिली है मेम्बर्स है, कौन स्पाउस है, कौन इनफैक्ट उसके ऑफिस कोवर्कर्स हैं, किस तरह की जॉब करता है, किस तरह क्या आजकल के इंटरेस्ट चल रहे हैं, 2 साल पहले क्या इंटरेस्ट थे, दे नो एवरी बिट अबाउट अस। नाउ दैट इज समथिंग प्रॉब्लमैटिक। व्हाट इफ Google gets compromised, Facebook gets compromised, with all of this data being leaked out to some third person? वो तो उन्होंने तो कोई कसम नहीं खाई हुई कि वो हमारे डेटा के साथ कोई मिस हैंडलिंग नहीं करेंगे। उन्होंने तो ये प्रॉमिस नहीं किया हुआ वो किसी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को वो डेटा सेल आउट नहीं करेंगे। देन व्हाट हैपन्स व्हेन अमेरिका गोज ऑन वॉर विद सम कंट्री, maybe which was ally before going to the war, जैसे इराक के साथ, अफगानिस्तान के साथ, उस केस में वो तमाम डेटा जो उसके सिटीजन्स के बारे में कलेक्ट किया गया ओवर 50 ईयर्स 30 ईयर्स, वो डेटा क्या अब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस के साथ शेयर करें? Now these are the big questions that arise with the emerging technologies and all the influence of these technologies. Nonetheless, हम इस perspective से ही रहते हैं कि hopefully these good guys who we think they are good guys remain the good guys we think they are. And let's talk about the
what are the cyber attacks that have hurt the organizations around the world and how much they have financially hit them, and what were their implications. So what is a cyber attack? In fact, cyber attack is basically a deliberate effort to disrupt a computer systems. It's a deliberate effort, and it's not just done by chance. उसके लिए hackers जो हैं वो कोड लिखते हैं, they write malwares, they spend years in researching how to write effective malware. They write such a malware that cannot be detected by antivirus solutions, जो कि commonly पाया नहीं जाता. If they spend so much time on reconnaissance about their target organization. For example, SolarWind attack के बारे में अगर आपको मालूम हो, जो कि अभी रिसेंटली एक इनफैक्ट दिसंबर 2020 के अंदर ही आइडेंटिफाई हुआ, और SolarWind अटैक के लेटर ऑन SolarWind अटैक के अंदर अटैकर्स ने इनफैक्ट एक मालवेयर टाइप किया, जो कि उन्होंने sorry, I guess my screen, क्या आप लोग मेरी स्क्रीन देख सकते हैं? Sir, notepad 1. This is not. This is probably Amar Jafri Saab's screen. Okay. I've reshared my screen. Okay. So I'm sorry जी, ये कोई बटन दब गया था मेरे से. I'm sorry for this. No problem, sir. Please no problem. Thank you. Thank you. Okay. So अगर हम बात करें इस तरह के sophisticated attacks की, तो अभी recently 2020 के अंदर we have seen SolarWinds attack, जो कि SolarWinds attack के अंदर हुआ ये कि SolarWinds is a company जो कि cyber security की services provide करती है to major organizations across the world, including Microsoft, including Department of Defense, including NSA, which is Cyber Intelligence Organization of America, और इसके अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के. यू कैन इमेजिन जिस कैलिबर पे ये लोग काम कर रहे थे. they provide SIEM solutions, they provide antivirus solutions and everything. So they were actually hacked, और उस हैक के नतीजे में हैकर्स ने क्या किया कि SolarWinds के सिस्टम से SolarWinds सॉफ्टवेयर का एक malicious अपडेट क्रिएट किया, जिसके अंदर हैकर्स ने अपना मालवेयर अटैच कर दिया, और वो एक रेगुलर अपडेट मैकेनिज्म के थ्रू उन्होंने पूरे SolarWinds के जो कस्टमर बेस थी उन तमाम को वो पुश कर दिया. और अल्टीमेटली बिकॉज हमें भी अगर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि आपके पास अपडेट्स की ऑप्शन आई हुई है, सिमिलरली मोबाइल फ़ोन पे आता है कि जी गूगल की तरफ से कि आपको अपडेट्स की ऑप्शन आई, वी ट्रस्ट इट. सिमिलरली सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने वो ऑटोमेटिकली वो ट्रस्ट करते हुए वो अपडेट्स इंस्टॉल कर ली, और उस इंस्टॉलेशन के नतीजे में उन तमाम लोगों की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो SolarWinds का सॉफ्टवेयर डिप्लॉयड था उसमें अटैकर का मालवेयर डिप्लॉय हो गया, एंड इंक्लूडिंग Microsoft as an organization was hacked as a result of SolarWinds attack, and this was discovered in December 2020. और ये जो particular activity, then they literally moved on to other computers, from one computer to another and then another. उन्होंने मल्टीपल एक्टिविटीज़ इस पूरे दौरानिए में की, उन्होंने मुख्तलिफ तरह के डेटा को कलेक्ट किया. दिस इज़ व्हाट एन एक्चुअल साइबर अटैक लुक्स लाइक. यही वो अटैक है जिसके बारे में मैं अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि खुदा ना खास्ता जिन ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर हम ट्रस्ट करके अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, क्या ये ऑर्गेनाइजेशंस हैक हो जाएं और उस नतीजे में कोई और इस पूरी चीज़ को टेक ओवर कर ले, इस इंफॉर्मेशन को गैदर कर ले, तो फिर क्या होगा हमारी इंफॉर्मेशन के साथ. This is what a sophisticated cyber attack looks like, जिसमें not even the securest and the most sophisticated organizations like Microsoft are safe from. So 2020 के अंदर हमने
बहुत एक्सटेंसिव राइज देखा है साइबर अटैक्स के अंदर, और ये साइबर अटैक्स सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल एप्लीकेशन एक्सप्लॉयटेशन से लेके सोफिस्टिकेटेड मैलिशियस अटैक्स तक भी जाते हैं, और इसके अलावा हमने ये रैंसमवेयर अटैक्स की तरह की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो होते हुए देखी है। और इस पूरे चीज़ के अंदर जो 53% अटैक्स हैं वो नेशन स्टेट एक्टर्स कर रहे हैं। हु आर नेशन स्टेट एक्टर्स, 53% फाइनेंशियली मोटिवेटेड अटैकर्स कर रहे हैं, और 13% नेशन स्टेट actors कर रहे हैं. Who are nation state actors? Nation state actors are basically one country's official cyber armies और cyber units जो कि दूसरी country के ऊपर spy करते हैं. Because of the shift in the paradigm of how we actually communicate with each other and how we store the data, there is a huge shift on how countries used to spy and how countries now use to spy on the other countries. आज से 100 साल पहले अगर मिलिट्री प्लान एक बंद कमरे के अंदर एक पेपर पेंसिल पर ड्रॉ होता है, तो उस टाइम पे एक दूसरी का ओपोनेंट कंट्री को अपना फिजिकल स्पाई वहाँ पे भेजना पड़ता था कि वो तमाम चीज़ों को रीड करे और अल्टीमेटली उनको आके बताए। आजकल ये तमाम चीज़ें बेशक बंद कमरे में होती हैं, लेकिन दे आर डन ऑन कंप्यूटर्स। तमाम चीज़ें डिज़ाइन करने के बाद अल्टीमेटली प्रेजेंटेशन बना के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को प्रेजेंट की जा रही होती है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट वॉर प्लान्स, इट्स सो मच मोर। आपके बिल्डिंग के डिज़ाइन, आपके मिज़ल के डिज़ाइन, आपके एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन, सो मैनी थिंग्स। ये तमाम चीज़ें आजकल कंप्यूटर्स पे हो रही हैं, और अब इनको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए और इनको चोरी करने के लिए ऑब्वियसली हम फिज़िकल स्पाइज भेजना एक मुश्किल काम है, दैट विच इट इज़ अ वेरी कॉस्टली एक्टिविटी, जो कि नियरली इम्पॉसिबल होता जा रहा है with the enhancement of much more security solutions or physical security barriers. तो अब नेशन स्टेट एक्टर्स इस चीज़ पे अब ज़्यादा फोकस करने लग गए हैं कि बजाय कि हम इतना अपना एक ह्यूमन रिसोर्स भेजें एक दूसरी कंट्री के अंदर, व्हाई नॉट वी क्रिएट अ मालवेयर जो कि हमारे बिहाफ पे ये एक्शंस परफॉर्म करे। So this is today's how countries are fighting the cyber wars. Similarly, financially motivation जो है वो एक आजकल बहुत एक डिफरेंट पैराडाइम के अंदर हम लोग चले गए साइबर वॉरफेयर के अंदर, बिकॉज विद द इंट्रोडक्शन टू रैंसमवेयर अटैक्स, अटैकर्स जो है वो करते क्या है इस सब चीज़ के अंदर। अटैकर्स बेसिकली आपके कंप्यूटर के ऊपर अपना मालवेयर डिप्लॉय करते हैं, और उस मालवेयर के ज़रिए वो आपकी तमाम फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देते हैं। और वो इनक्रिप्ट करने से मुराद ये है कि वो फाइल्स आपकी बिल्कुल यूजलेस हो जाती हैं, दे बिकम ऑफ नो यूज, दे आर देयर सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू। आप उसको देख सकते हैं, आप उसको क्लिक कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट ओपन इट, और आप उसको उसकी एक्चुअल स्टेट के अंदर भी नहीं लेके आ सकते। और फिर वो आपको कहते हैं कि जी अगर आपको आपकी फाइल्स वापस चाहिए तो you need to pay us this much amount of money. This is what financial motivated hackers do. Ransomware attacks करते हैं. They also hack banks and systems, banking sectors को hack करते हैं. We have seen major cyber incidents in Pakistan as well, जिसमें unfortunately एक बैंक मैं नाम नहीं लूँगा वो compromise हुआ, and we lost millions of dollars in that cyber attack. But alhamdulillah उसके culprits पकड़े भी गए हैं, and we have won the case against them as well in international court or Canadian court. But the point is कि it happened और उसके नतीजे में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ. We have seen banking major bank hacks in Bangladesh as well, जहाँ पे billions of dollars तक की heist होते देखी है. इसके अलावा बहुत सारे और banks इस तरह से compromise होते आ रहे हैं. So financially motivated hackers are also very in line with the cyber attack chain as of right now. आजकल the next big thing of today's world is IoTs. जैसे मैंने कहा कि हम लोग बहुत ज़्यादा ओवरली डिजिटलाइज होते जा रहे हैं. हमारे पास स्मार्टफोन्स के साथ साथ स्मार्ट वॉचेस भी आ रही हैं, स्मार्ट क्लोथ्स भी आ रहे हैं. वी हैव सेंसर्स एवरीवेयर.
हमारे घरों में हमारे एसीज में सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि क्लाइमेट कंट्रोल कर रहे हैं, जो कि वाईफाई से कनेक्ट करवा देते हैं। वी हैव स्मार्ट टीवीज, वी हैव स्मार्ट कैमराज इवन, जो कि हमारे घर पे किसी को आने पे ग्रीट करते हैं और उसकी पिक्चर लेके आपको आपके मोबाइल फ़ोन पे सेंड कर रहे होते हैं। So we have all these of IoT devices. What is an IoT device? A simple device which is basically connected to the internet, and it is communicating one way or another with the other devices on the internet. So the most common IoT device we all have with us is basically smartphone, a mobile phone. जो कि बेसिकली हर टाइम पे इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है एंड इट इज़ द बेस्ट स्पाइंग टूल बिकॉज इट हैज़ all the things a spy needs. It has camera, it has microphone, it has all your personal files, it has all your personal pictures. It is always with you at all times, and if someone wants to get to know you, their primary target may be your mobile phone or your smartphone. So इन तमाम चीज़ों के साथ बेसिकली IoT जितने भी हैं ये एक बहुत बड़ा एक सरफेस एरिया है जिनको अटैकर्स अटैक कर सकते हैं. सो देन वी हैव क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के इंट्रोडक्शन से पूरी ऑर्गेनाइजेशंस को हमने बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन की तरफ, बिजनेस पर्सपेक्टिव से एक्सपेंशन की तरफ ले गए. हमारी चीज़ें रिलेटिवली आसान हो गई हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन क्लाउड सर्विसेज हैं, एज़्योर क्लाउड सर्विसेज है, डिजिटल ओशन की क्लाउड सर्विसेज हैं, गूगल की क्लाउड सर्विसेज हैं. सो व्हाट कंपनीज डू इज़ दे परचेज अ क्लाउड, दे रेंट अ क्लाउड इनफैक्ट, और उस क्लाउड के ऊपर अपना तमाम प्रोप्राइटरी डेटा रख देते हैं. And then that data is being utilized by their customers, by their जो भी उनका एक बिजनेस मॉडल है उसके अंदर वो यूटिलाइज हो रहा होता है. इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव से, एक फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं. ऑब्वियसली उसके अंदर आपको खुद से इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप नहीं करना पड़ता, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, उसकी अपग्रेडेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, विच यू कैन नॉट बेयर. बट एट द सेम टाइम जब खुदा ना खास्ता हम अटैक्स का पर्सपेक्टिव देखें तो अगर क्लाउड इटसेल्फ हैक हो जाए तो फिर आपके साथ क्या होगा. वी हैव सीन क्लाउड इटसेल्फ हैक होने से मुराद मेरी दो चीज़ों की है. क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, जो कि हमने एक अभी रिसेंटली गवर्नमेंट इदारे के साथ एक इंसिडेंट हुआ, साइबर इंसिडेंट, उसके अंदर हमने वो चीज़ होते देखी जहाँ पे उनका, हालांकि वो उन्होंने एक्सटर्नल क्लाउड्स पे नहीं होस्ट की हुई थी अपनी चीज़ें, इंटरनल क्लाउड ही था, लेकिन वो कंप्लीट क्लाउड कॉम्प्रोमाइज़ हो गया और वो क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर ही बैठ गया, जिसकी वजह से उनकी तमाम सर्विसेज बंद हो गई. द अदर पर्सपेक्टिव है कि आप अपने क्लाउड को कितना सिक्योर समझते हैं. जैसे कि आई क्लाउड के ऊपर आईफोन के यूजर्स अपने पिक्चर्स अपलोड करते हैं. आईफोन की जो प्रोप्राइटरी कंपनी है एप्पल, वो क्लेम करते हैं कि जी हमारे आई क्लाउड को कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता बिकॉज वी यूज़ स्टेट ऑफ द आर्ट इंक्रिप्शन. दैट इज़ फाइन, दैट मे बी ट्रू एज वेल, बट व्हाट इफ समवन गेट्स योर यूजर नेम एंड पासवर्ड, फिर वो इम्पोस्टर के तौर पे उन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं. वो इम्पोस्टर के तौर पे सिंपली आई क्लाउड पे जाएंगे, आपके क्रेडेंशियल्स ऐड करेंगे और आपकी प्राइवेट पिक्चर्स वहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं. वी हैव सीन इट हैपनिंग विद मल्टीपल सेलिब्रिटीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड, जिनकी बहुत सारी पर्सनल पिक्चर्स और शायद ऐसी पिक्चर्स जो कि क्लाउड पे होनी ही नहीं चाहिए थी, इनफैक्ट मोबाइल फ़ोन में नहीं होनी चाहिए थी, वो उन लोगों के क्लाउड से लीक होते हुए देखी है. सो क्लाउड से रिलेटेड हम अगेन ट्रस्ट लेवल ह्यूमन का जो है वो बहुत ज़्यादा है टुवर्ड्स दी सर्विसेज, दीज कंपनीज, जिसके अंदर हम लोग उनके साथ अपने डेटा ना सिर्फ शेयर करने को रेडी बैठे होते हैं, बल्कि हम हर चीज़ उनको हैंड ओवर करने को रेडी बैठे हुए होते हैं. और अल्टीमेटली उसका नुकसान हमें बहुत ज़्यादा हो सकता है एज कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ ईजीनेस दे आर प्रोवाइडिंग अस. Then there is a new technology which is very interesting, very in-depth field है machine learning की. इसके साथ साथ मशीन लर्निंग के अंदर बहुत मेगा फील्ड है, हर इसकी इम्प्लीकेशंस हर पॉसिबल फील्ड के अंदर है. हम मेडिकल से लेके
एस्ट्रोनॉमी से लेके सिंपल इमेजिंग से लेके हर तरफ इसकी एप्लीकेशंस है. You name it, machine learning can maybe solve some problems, major problems. इसके साथ कुछ इसकी डार्क साइड्स भी आती हैं, जिसके अंदर कुछ ऐसी साइड्स हैं जो कि malicious actors यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल in start of 2017 and 2018, we have seen some malwares which have machine learning capabilities. और वो मालवेयर स्पेसिफिकली राउटर्स को स्विचेस को जाके कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और उस स्विच और राउटर पे बैठ के दे स्पेशलाइज in reading the data and understanding the behavior of the people of the organization, and ultimately उस behavior के बेस पे वो identify करते हैं this may be the person who is CEO of the company, this may be the person who is the developer, एंड अल्टीमेटली वो कैटेगराइजेशन के बाद अल्टीमेटली उनके स्पेसिफिक लोगों का डेटा कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं. सो वी हैव सीन डार्क साइड ऑफ मशीन लर्निंग एज वेल. दिस इज़ वन एस्पेक्ट. द अदर एस्पेक्ट, ये तो एक एस्पेक्ट है जो कि ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव से है, या दूसरा एस्पेक्ट पर्सनल पर्सपेक्टिव से. वी हैव सीन टेक्नोलॉजीज लाइक डीप फेक्स. डीप फेक बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर आप किसी और की वीडियो के ऊपर किसी और का चेहरा अटैच कर देते हैं, और वो चेहरा जब आप अटैच करते हैं, इट लुक्स एंड फील्स एग्जैक्टली इफ दैट पर्सन इज डूइंग द एक्ट. खुदा न खासा किसी भी एक चोरी की वीडियो है, कोई बंदा चोरी कर रहा है, कोई सीसीटीवी की फुटेज है और उसमें कोई मिस्टर ए है. आप एज हैकर उस वीडियो को लेके मिस्टर बी की इमेज या मिस्टर बी की पिक्चर उस या उसकी शक्ल उस पूरी वीडियो के अंदर अटैच कर सकते हैं. और विद पैसेज ऑफ टाइम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स इतने स्ट्रॉन्ग हो गए कि आप एक इवन इन वो चेहरे के जो तासुरात जिसे कहते हैं, थोड़ा बहुत आपकी लिप मूवमेंट्स, आपकी फेशियल मूवमेंट्स, हर चीज़ को वो इतना परफेक्टली मिमिक करता है कि लगता है कि जैसे वो असली वीडियो है. These type of things have huge implications on the international security. आपको पता होगा in start of COVID, Twitter got hacked. Twitter हैक होने के नतीजे में मल्टीपल बड़े लोगों के ट्विटर अकाउंट से मल्टीपल ट्वीट्स की गई थी जो बेसिकली स्कैम ट्वीट्स थी, और वो लोगों ने क्विकली आइडेंटिफाई कर लिया था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी की गई थी और मल्टीपल लोगों की तरफ से की गई थी. व्हाट इफ उस पर्टिकुलर अटैक के अगेंस्ट वो किसी सोफिस्टिकेटेड नॉन फाइनेंशियली मोटिवेटेड अटैकर ने किया होता, मे बी सम स्टेट एक्टर ने किया होता, और खुदा ना खास्ता किसी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक वीडियो पोस्ट की जाती जो कि एक डीप फेक मेड वीडियो होती, जिसमें कहा जाता है कि हम आज अपनी ओपोनेंट कंट्री को अटैक कर रहे हैं. मे बी वो वीडियो इंडिया की तरफ से पोस्ट की जाती है कि हम आज पाकिस्तान को अटैक कर रहे हैं, या पाकिस्तान की तरफ से की जाती है हम इंडिया को अटैक कर रहे हैं, और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस, व्हाटएवर किसी भी मेजर किसी अकाउंट से की जाती, तो उसके रिप्रिकॉशंस ह्यूमन लाइफ्स की सूरत में होते हैं. उसके रिप्रिकॉशंस में किसी भी साइड से इस तरह की कोई वीडियो पोस्ट होती तो अल्टीमेटली दूसरी ओपोनेंट साइड ने तस्दीक किए बगैर फिजिकल वॉर स्टार्ट कर देनी थी. सो इतनी बड़ी रिप्रिकॉशंस हैं इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ की हमारी कॉमन लाइफ्स के अंदर. अब इन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर हम बात करते हैं कि अटैक्स कौन परफॉर्म करता है और किस तरह से परफॉर्म कर रहा होता है. The most notorious type of attackers are actually APTs. ये APT actually stands for Advanced Persistent Threat. APT होते क्या हैं, होते कौन लोग हैं और इनका एक्चुअल मोटिवेशन क्या होती है. APT is basically Advanced Persistent Threat उसको कहा जाता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन एक टारगेट के पीछे years and years spend करते हैं. They are people who are called APTs, जो कि mostly state sponsored होते हैं, नेशनल एक्टर्स होते हैं, जो कि जिनको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही होती है,
बेसिकली उनके पास, हम वर्चुअली कंसिडर ये करते हैं कि उनके पास इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ फंडिंग होती है, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ सोर्स ऑफ वेल्थ होती है, कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज उनके पास इनफाइनाइट होते हैं। अब मैं इनफाइनाइट का जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ वो अगेन इस टर्मिनोलॉजी के पर्सपेक्टिव से कर रहा हूँ कि जो भी कंट्री उसको सपोर्ट करेगी, जब एक आर्मी किसी चीज़ को सपोर्ट करेगी तो डेफिनेटली दे विल हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल बैकिंग। सो व्हाट डू, दे फाइंड देयर टारगेट। हाउ डू दे फाइंड इट? वो मल्टीपल रिकॉनेसेंस के टेक्निक्स हैं, जो कि फिजिकल रिकॉनेसेंस भी हो सकती है, वो साइबर रिकॉनेसेंस भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, हम एक छोटी सी एग्जांपल लेके चलते हैं कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान के ने एक कि जो JF-17s हैं उनके ऊपर किसी ने साइबर अटैक करना हो, या उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन किसी और ने कलेक्ट करनी हो। ऑब्वियसली हमारे इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने जो काम किया है, दे हैव मेड इट ह्यूज सक्सेस, और एक बहुत बड़ी चीज़ है कि पूरा एक जहाज़ फाइटर जेट बनाना। तो ऑब्वियसली इसके अंदर मल्टीपल तरह की ऑर्गेनाइजेशंस के भी रोल्स हैं, मल्टीपल तरह के लोगों ने उसके ऊपर रिसर्च की, बनाया, अल्टीमेटली मल्टीपल कंपोनेंट्स डिज़ाइन हुए। व्हाट इफ़ के इंडिया इसी तरह का एक जहाज़ बनाना चाहते हैं और उनको एक्स कंपोनेंट, कोई भी एक कंपोनेंट है जो उनसे खुद से नहीं बनाया जा रहा, नाउ दे वांट to obtain it from Pakistan. How do they do it? They will actually be identifying कि यार ये specific component कौन सी organization ने बनाया, और उसके बाद जब उनका टारगेट डिफाइन हो गया कि यार ये फलानी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है या ये फलाने इंजीनियर ने बनाया है जो कि एयरफोर्स के अंदर डिप्लॉयड है, तो फिर उसके बाद वो उसके ऊपर रैकी स्टार्ट करते हैं कि जी ये ऑर्गेनाइजेशन है, व्हाट डू दे डू, हाउ मेनी पीपल दे हैव, what technologies do they use, where the people live। और ये तमाम रिकॉनेसेंस आजकल के दौर में इस तमाम डेटा के साथ, इस तमाम बिग डेटा के साथ ओवर द इंटरनेट करना बहुत आसान है। अब आपको फिजिकली लोग भेजने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जब आप रिसर्च कंप्लीट करते हैं तो फिर यू स्टार्ट डेवलपिंग एन एक्शन प्लान अगेंस्ट द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, और वो लोग ये वाला एंटीवायरस इस्तेमाल करते हैं, ये वाली ईमेल सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं, और ये वाली ऑफिस सूट इस्तेमाल करते हैं, लाइक ऑफिस 2013 का इस्तेमाल करते हैं, जीमेल की ईमेल सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का इस्तेमाल करते हैं, और जिस लैंग्वेज में वो डेवलपमेंट करते हैं वो .NET है। अब ये तमाम इन्फॉर्मेशन जब वो कलेक्ट कर लेंगे तो उसके अगेंस्ट वो स्पेसिफिक अटैक का मेथडोलॉजी क्रिएट करेंगे। हाउ विल दे डू इट? दे विल बी एक्चुअली राइटिंग अ मालवेयर जो कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से रेलेवेंट होगा। वो ऐसा मालवेयर बनाएंगे, उसका डिलीवरी मेथड इस तरह का बनाएंगे जो कि गूगल के जीमेल के साथ अटैच हो सके, और वो उसको इस तरह से भेजेंगे कि जो एंटीवायरस उन्होंने आइडेंटिफाई किया है उस एंटीवायरस के अगेंस्ट वो अटैकिंग मालवेयर रेजिस्टेंट हो। अल्टीमेटली क्या होगा कि जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे तो वो अटैक लॉन्च करेंगे, वो एक ईमेल भेजेंगे जो कि बहुत फ्रेंडली लुकिंग होगी, जो कि यूज़र को साइकोलॉजिकली कंपेल करेगी कि वो अटैचमेंट को डाउनलोड करके डबल क्लिक करे। अल्टीमेटली वो प्रॉब्ली वो एक PDF फाइल हो सकती है, वो डॉक फाइल हो सकती है, वट एवर इट इज़, और उसको जब वो डबल क्लिक करेगा तो वो मालवेयर डिप्लॉय होगा उस विक्टिम के कंप्यूटर पे, और वहाँ से अटैकर्स को उस कंप्यूटर का कंट्रोल मिल जाएगा, और अल्टीमेटली अटैकर्स चाहें तो वहाँ से फिर वो फाइल उठा सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट्स लुक लाइक, एंड दिस इज़ व्हाट दे एक्चुअली डू। और ये पर्टिकुलर अटैक परफॉर्म करने के लिए, और इस तरह का अटैक परफॉर्म करने के लिए इट टेक्स मंथ्स एंड मे बी ईयर्स एज वेल, जिसमें तमाम तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से लेके फाइनल रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करना, डेटा एक्सफिल्ट्रेट करना। दिस इज व्हाट APTs डू अक्रॉस द वर्ल्ड। सिमिलरली फाइनेंशियली मोटिवेटेड हैकर्स जो हैं वो रैंसमवेयर्स की तरफ जाते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिकली रैंसमवेयर्स क्या कर रहे होते हैं, आपकी फाइल्स को इनक्रिप्ट करते हैं और अल्टीमेटली आपको कहते हैं आप पे करें, और इंटरेस्ट
आपके ज़हन में अब सवाल आता होगा कि यार ये पेमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, इस पेमेंट फॉर एग्जांपल मैं पेमेंट कर भी देता हूँ तो फिर वो अटैकर पकड़ा क्यों नहीं जाता, उसके बारे में पता क्यों नहीं चलता? उसकी सिंपल सी रीज़न ये है कि जो पेमेंट की डिमांड अटैकर्स करते हैं वो बिटकॉइंस में करते हैं। और जो बिटकॉइन आप टेक्नोलॉजी, इफ़ यू आर नॉट अवेयर, बिटकॉइन में आप वॉलेट टू वॉलेट अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं एंड यू डू नॉट नो दिस कि ये पर्टिकुलर वॉलेट किस पर्सन को बिलोंग करता है। सो दिस इज़ वेयर द एनोनिमिटी कम्स इन, कि अटैकर जो है वो एनोनिमस रहते हुए भी अमाउंट रिसीव कर सकता है। सो दिस इज़ वाई द एक्चुअल रैंसमवेयर बिजनेस इज़ थ्राइविंग। और आजकल एक बिटकॉइन की वैल्यू भी मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के अंदर चली गई है, और उसकी वजह से ये और भी ज़्यादा एक लुक्रेटिव बिजनेस होता जा रहा है। उसकी रीज़न सिंपल सी ये है कि इन 2010 7 बिटकॉइंस का एक पिज़्ज़ा आता था, और आज एक बिटकॉइन में पता नहीं कितने कितने लाखों रुपए हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर बिल्कुल अर्ली डेज में किसी के पास किसी ने रैंसमवेयर अटैक किया जब बिटकॉइन की वैल्यू मे बी $100 थी, और उसने 3-4 बिटकॉइंस रिसीव कर लिए, तो आज वही अटैकर बहुत ज़्यादा वेल्थ का मालिक है एज़ कम्पेयर टू बैक इन मे बी 2015 to 2016। तो इस वजह से, क्योंकि उनकी वेल्थ जो पड़ी हुई है वो भी पड़े पड़े ही अब एक अपने आप को मल्टीप्लाई करती जा रही है, तो उस वजह से भी एक लुक्रेटिव बिजनेस होता जा रहा है। सो रैंसमवेयर, और अगर ये छोटी कंपनीज पर्सनल अटैक्स ना हो, तो ये जब बड़ी कंपनीज के ऊपर अटैक किया जाता है तो फिर तो ये एक बहुत ही ज़्यादा लुक्रेटिव हो जाता है। क्योंकि वी रिसेंटली अमेरिका के ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एक स्टेट के ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर ये अटैक परफॉर्म किया गया था, और उसके नतीजे में द अमेरिकन गवर्नमेंट पेड मिलियंस ऑफ डॉलर्स कि उसको रिलीज़ करवाने के लिए। The next is the IoT devices which got compromised. IoT devices जब compromise होती हैं, और वो कैसे compromise होती है, मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। IoT devices हमारे मुल्क में भी डेवलप की जा रही हैं, हर मुल्क में डेवलप की जा रही हैं। They are very good technologies, और they definitely are required for our enhancement in modern technology. इसका प्रॉब्लम क्या होता है, और जब ये हैक होती हैं तो ये इतनी बुरी तरह से क्यों हैक होती हैं? इसके सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हाइकविजन के कैमरास हैं, हम अक्सर अपने घरों में भी लगवाते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में भी लगे हुए हैं। दे हैव recently, very recently, they have been identified to have a very critical vulnerability in themselves, जिसको कोई बंदा भी उस पर्टिकुलर नेटवर्क से अटैच होकर एक्सप्लॉइट कर सकता है। उस एक्सप्लॉइटेशन के नतीजे में वो बंदा कंप्लीट कंट्रोल ले सकता है कैमरे के ऊपर। और फ्रॉम कंट्रोल आई डू नॉट मीन कि वो सिर्फ वीडियो, या अगर फॉर एग्जांपल ऑडियो ऑप्शंस हैं तो वो कैप्चर करेगा, वो बल्कि उस कैमरे के ऑपरेटिंग सिस्टम को भी कंट्रोल कर सकता है। और इस चीज़ का मतलब ये है कि अगर वो कैमरा इंटरनेट से कनेक्टेड है तो उस कैमरे को यूज़ किया जा सकता है एज ए पिवट पॉइंट। व्हाट इज़ अ पिवट पॉइंट? जैसे हमने SolarWinds के अटैक के अंदर बात की कि माइक्रोसॉफ्ट गॉट हैक्ड बाय यूजिंग ए SolarWinds सॉफ्टवेयर अपडेट। इसी तरह से अब एक कंप्यूटर को उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया और पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दे लैटरली मूव्ड। ऑब्वियसली हर चीज़ हैक नहीं की, बट टू सम एक्सटेंट दे मूव्ड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। सिमिलरली, अगर खुदा ना खास्ता हाइकविजन के कैमरास कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क से अटैच्ड हैं, और अटैकर कंफर्टेबली उस कैमरे में इसलिए बैठ सकता है क्योंकि उस कैमरे के अंदर कोई भी एंटीवायरस सॉल्यूशन नहीं पड़ा हुआ, और अटैकर उस कैमरे को यूज़ करता है एज पिवट पॉइंट, और उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी कंप्यूटर्स नेटवर्क पे वेब एप्लीकेशन चल रही है, मोबाइल एप्लीकेशन, वॉट एवर इट इज़, उसको वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। सो दिस इज़ वेयर द प्रॉब्लम कम्स इन। और अब हाइकविजन के कैमरास जिस ऑर्गेनाइजेशन में डिप्लॉयड है, वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन जिसके अगेंस्ट वनरेबल है, वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन इसको इस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। दिस इज़ व्हाट द प्रॉब्लम लुक्स लाइक, और इसका मैग्नीट्यूड इसलिए इतना बड़ा है
कि IoT डिवाइसेस कॉमनली हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती हैं और सेम सॉफ्टवेयर फीचर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है और ये मोस्टली आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। समटाइम्स तो ऐसी डिवाइसेस भी देखने को मिली हैं जो कि बेसिकली एक दूसरे से अपडेट्स ले रही हैं। फॉर एग्जांपल एक कैमरे का अपडेट आपने किया तो बाकी के तमाम कैमराज ऑटोमेटिकली पहले कैमरा से अपडेट हो रहे होंगे या कोई डिवाइस से अपडेट हो रहे होंगे। तो उस सर्टेन सिनेरियो के अंदर भी अगर कोई मेलिशियस अपडेट आ जाए तो तमाम डिवाइसेस में ऑटोमेटिकली वो लेटरली मूव कर सकती है। क्लाउड सिक्योरिटी चैलेंजेस में बहुत सारे डिफरेंट तरह के चैलेंजेस हैं, जिसके अंदर मैंने एक तरह का चैलेंज आपको इम्पोस्टर चैलेंज का बताया था, जिसमें क्रेडेंशियल्स लोगों के चोरी हो जाते हैं। दूसरी तरह के चैलेंजेस में कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हैं और इसके अलावा डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हैं, जहाँ पे जो क्लाउड से इंटरेक्शन के लिए APIs बनाई जाती हैं वो इतनी सिक्योर नहीं होती कि वो किसी साइबर थ्रेट को प्रिवेंट कर लें। अटैकर्स इन APIs को मैनिपुलेट करके सेंसिटिव डेटा समटाइम्स फेच कर लेते हैं। इसके अलावा जो मेल्ट डाउन एंड स्पेक्टर तरह की वनरेबिलिटीज़ हैं, दे आर वेरी वेरी क्रिटिकल इन नेचर एंड इनफैक्ट दे कैन नॉट बी पैच्ड। पैच इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि ये दोनों तरह की वनरेबिलिटीज़ एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम की भी नहीं है, बल्कि ये प्रोसेसर लेवल की वनरेबिलिटीज़ है। इनको पैच करने के लिए आपको फिजिकल हार्डवेयर चेंज करना पड़ेगा और फिजिकल हार्डवेयर चेंज करना एक नियरली इम्पॉसिबल चीज़ है अक्रॉस द ग्लोब। ऑब्वियसली कुछ ऑर्गेनाइजेशन तो कर लेंगी, लेकिन अक्रॉस द ग्लोब हर जगह पे ये चीज़ करना नियरली इम्पॉसिबल है। सिमिलरली ह्यूमन एरर की तो चांसेस हमेशा रहते ही हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा कि फेसबुक वेंट ऑफलाइन। आई एम नॉट सेइंग इट वाज अ ह्यूमन एरर और समथिंग, मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा, बट जस्ट सेइंग कि कभी भी ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। सो क्लाउड पे जब भी आप ट्रस्ट करें तो मेक श्योर यू कीप अ बैकअप ऑफ इट और समहाउ यू encrypt the data before you upload it onto their infrastructure and before you trust them, because you never know what may happen to your data once it's not on your premises or and once it's on someone else's premises. Then we have cryptocurrencies and blockchain related cybersecurity challenges. No doubt, blockchain technology is an extraordinary technology and it is said that it cannot be hacked. But we have recently seen a few blockchain related cyber attacks. That is one thing, जो कि technology itself उसके अंदर आ रहे होते हैं। लेकिन एक और तरह के भी attacks हमने देखे। We have seen crypto exchanges getting hacked. What is a crypto exchange? It's like एक sort of बैंक आप समझ लें, एक सॉफ्टवेयर समझ लें। We have seen them getting hacked it by itself, और वो जब कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं तो अल्टीमेटली लोगों की प्राइवेट कीज़ जिनकी बेसिस पे पूरी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी चल रही है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है। तो हमने देखा है कि काफ़ी सारी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैक हो जाती हैं और अल्टीमेटली जितने भी लोगों के उस एक्सचेंज में बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी कोई भी हो सकती है वो पड़ी होती है, वो तमाम की तमाम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। सो इस तरह के प्रॉब्लम्स भी देखने को आते हैं। सो ब्लॉकचेन हैज़ इट्स ऑन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। अगर हम 100% ब्लॉकचेन को ऑप्ट करें तो मे बी दैट मे बी सिक्योर, बट अगर हम हाइब्रिड सोल्यूशन में उसको ऑप्ट कर रहे हैं तो देन देयर आर सम सर्टेन डेफिनेटली सम प्रॉब्लम्स। देन वी हैव AI रिलेटेड एंड मशीन लर्निंग रिलेटेड अटैक्स, जो कि समटाइम्स डेटा पॉइजनिंग कॉज कर सकते हैं, जो कि मैनिपुलेटिवली डेटा सेट्स को हम लोग इस तरह से पॉइजन कर दें या उसके अंदर फेक डेटा भेजना शुरू कर दें, जो अल्टीमेटली मशीन जो कि उस डेटा के बेस पर लर्न कर रही है वो लर्निंग उसकी मैनिपुलेट हो जाए या जेपरटाइज हो जाए। सिमिलरली डिस्ट्रक्टिवली हम बात करें AI को यूज़ करते हुए कैप्चर्स को बाईपास किया जा सकता है, पासवर्ड्स को ब्रूट फोर्स किया जा सकता है और ऐसे मालवेयर्स बनाए जा सकते हैं जो कि एंटीवायरस को आसानी से बाईपास कर लें। सो दीज आर सम ऑफ द वेरी कॉमन एंड अब्यूसिव यूज ऑफ AI एंड मशीन लर्निंग। तो हमारी नज़र में हमने जो ओवरऑल अब तक इतने मल्टीपल गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है, उसमें
क्यों ये तमाम प्रॉब्लम्स आते हैं, हैकर्स क्यों ये काम करने में कामयाब हो जाते हैं, उसमें एक बहुत बड़ी रीज़न ये है। अगर हम IoT डिवाइसेस के पर्सपेक्टिव से बात करें तो अक्सर डिवाइसेस को फंक्शनल बनाने की कोशिश की जा रही होती है और उसमें सिक्योरिटी का एस्पेक्ट इंक्लूड करने का दूर दूर तक सोचा ही नहीं जाता। सेकेंडली, IoT डिवाइसेस को जब बनाया जाता है तो इस तरह से बनाया जाता है, दे नीड टू वर्क ऑन सम थिंग्स। उसके अंदर कोई अपडेशन के फीचर्स रखे ही नहीं जाते। तो उससे नतीजे में ये होता है कि अल्टीमेटली अगर एक सॉफ्टवेयर लिख दिया गया है किसी इंडस्ट्रियल सिस्टम के अगेंस्ट, तो वो सॉफ्टवेयर अगर हैकेबल है तो उस तरह की तमाम डिवाइसेस हैकेबल होंगी अनटिल एंड अनलेस उस डिवाइस को वहाँ से उतार के मे बी दोबारा उसके ऊपर फर्मवेयर रन मतलब राइट किया जाए जो कि पैच्ड हो और अल्टीमेटली वहाँ पे दोबारा लगाया जाए, तब तक वो डिवाइस पैच नहीं हो सकती। बाय डिज़ाइन दे आर नॉट मेड फॉर टू रिसीव एनी सिक्योरिटी अपडेट। सॉरी। सिमिलरली जो नॉर्मल डेवलपर्स हैं, they do not know about the best practices that should be followed from security perspective. This is a very important point. आप लोग तमाम इंडस्ट्री से भी बिलोंग करते हैं, यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट्स भी आप में से बहुत सारे लोग हैं, तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन आप लोगों को ये होगी, ख़ासतौर पे जो लोग डेवलपर्स बन रहे हैं, कि प्लीज़ आप स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। Standards are the most important things when they come to secure software development. Majority problems जो cyber से related emerge हो रहे हैं, security से related emerge हो रहे हैं, softwares के अंदर identify हो रहे हैं, they are because of the poor security practices that are being followed while developing the application. Next point is कि ransomware क्यों increase हो रहे हैं, because of the financial perspective of all these things. और again ransomware itself तब होता है जब actually अटैकर malware system तक पहुंचा देता है. Once the attacker is able to touch the underlying system, then he may deploy a ransomware or a spyware. It's totally up to them. So increasing ransomware के अंदर इतना ज़्यादा hike, obviously financial perspective की वजह से ज़्यादा. So what steps or multiple organizations can take, an organization can take to prevent the cyber threat is अब सबसे पहले अपनी नेटवर्क सिक्योरिटी को देखें, नेटवर्क सिक्योरिटी के पोस्चर को देखें. उसके अंदर देखने की ज़रूरत है कि कौन कौन सी मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओपन विंडोज़ हैं जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं. सेकेंडली, मालवेयर प्रिवेंशन के लिए कोई अच्छा एंटीवायरस सोल्यूशन, EDR सोल्यूशन, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम डिप्लॉय करने की ज़रूरत है. थर्ड इज़ द मॉनिटरिंग सिस्टम्स. मॉनिटरिंग सोल्यूशंस जैसे कि स्टीम सोल्यूशंस होते हैं, इन सोल्यूशंस की डिप्लॉयमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड मालवेयर्स जो कि एंटीवायरस और EDRs को बाईपास कर लेते हैं, तो वो एटलीस्ट मॉनिटरिंग सोल्यूशंस के अंदर डिटेक्ट हो सकते हैं. और मॉनिटरिंग सोल्यूशंस में आपके पास 24/7 लोग मौजूद होते हैं जो कि उस पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को और उसकी कम्युनिकेशन को कॉन्टीन्यूसली देख रहे होते हैं. और उसके अंदर अगर एबनॉर्मेलिटी आ रही है या कोई डिफरेंट तरह की एक्टिविटी हो रही है जो कि यूजुअली इस तरह की नहीं होती, तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई किया जा सकता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक साल पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन 9 to 5 के बाद इनएक्टिव रहती है और एक साल के बाद किसी एक दिन रात को 3 बजे उसके ऊपर नेटवर्क एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है. नाउ दिस इज़ एन एबनॉर्मल बिहेवियर जिसको वहाँ पे बैठे हुए जो ऑन साइट या मॉनिटरिंग के लिए जो लोग डिप्लॉयड हैं वो इस चीज़ को डेफिनेटली नोटिस करेंगे और उसके अगेंस्ट रिपोर्ट भी करेंगे. और फिर इंसिडेंट मैनेजमेंट का फेज़ आता है कि अगर एक इंसिडेंट हो गया है, रात को 3 बजे कंप्यूटर एक्टिव होके कम्युनिकेशन करना शुरू हो गया है और इट इज़ सेंडिंग लोड्स एंड लोड्स ऑफ डेटा मे बी इन GBs, देन दैट इज़ प्रॉबेबली ए साइबर थ्रेट और साइबर इंसिडेंट. तो उस पर इंसिडेंट मैनेजमेंट टीम भी मौजूद होनी चाहिए जो कि उस पर्टिकुलर टाइम पे उस इंसिडेंट को ना सिर्फ कंटेन करे, उसका रिस्पॉन्स दे, बल्कि उसको
नेक्स्ट टाइम होने से भी बचाए और आइडेंटिफाई करे कि कौन सा ऐसा वीक पॉइंट था जहाँ से ये अटैकर इंट्रूड करके सिस्टम के अंदर आया। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द यूज़र एजुकेशन एंड अवेयरनेस। आमतौर पे सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर्स, प्रोडक्ट्स, ये तमाम चीज़ें काफ़ी हद तक सिक्योर की जा सकती हैं, लेकिन जो सबसे वीकेस्ट लिंक है इस पूरी साइबर चेन के अंदर, इट इज़ द ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमंस आर द वीकेस्ट चेन इन ऑल ऑफ द साइबर थिंग्स। कहा यह जाता है कि नॉर्मल हैकर्स सिस्टम्स हैक करते हैं, जो एक्सपर्ट हैकर्स हैं वो ह्यूमंस हैक करते हैं। They actually hack humans to gain a username and password to the system and ultimately log in with that username and password. Why to hack a system when you can just get the keys for the system? So जो expert hackers हैं वो आमतौर पे social engineering पे focus करते हैं. So you need to actually train and educate your human resource कि वो किस तरह के चीज़ों को उन्होंने ओपन करना है, किस तरह की चीज़ों को ओपन नहीं करना, किस तरह की चीज़ अगर कंप्यूटर पे हो तो सिक्योरिटी टीम को अलर्ट करना है, और किस तरह से कौन सी चीज़ें, कौन सी तरह का पासवर्ड रखना है और कौन सी तरह का पासवर्ड नहीं रखना। सो इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस की रिक्वायरमेंट होती है यूज़र्स को। तो वो अल्टीमेटली दैट इज़ अगेन द वीकेस्ट लिंक, तो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। दैन एक ऑर्गेनाइजेशन को इस पर्सपेक्टिव से भी देखना है कि अगर कोई बंदा वर्क फ्रॉम होम कर रहा है या रिमोटली वर्क कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर जो VPN का इस्तेमाल किया जा रहा है, हाउ सिक्योर दैट VPN इज़ एंड हाउ कंटेन्ड दैट VPN इज़। सिमिलरली सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव्स। फिर इसके अलावा अक्सर मालवेयर जो है वो USBs के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। सो रिमूवेबल डिवाइसेस को कंट्रोल करना इज एन एसेंशियल पार्ट, इंटेग्रल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी। और फिर जो यूज़र्स हैं उनकी मल्टीपल प्रिविलेजेस सेट करना कि कौन से प्रिविलेज का यूज़र किन किन चीज़ों को एक्सेस कर सकता है, कौन सी डिपार्टमेंट का यूज़र किन चीज़ों को एक्सेस कर सकता है। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। वी हैव सीन कंपनीज गेटिंग हैक्ड बाय HR डिपार्टमेंट कंप्यूटर्स। अटैकर्स HR वालों को हैक करते हैं। HR को हैक करना रिलेटिवली आसान इसलिए है क्योंकि HR इज़ द कंपनीज पब्लिक फेस, जो कि लोगों की CVs रिसीव कर रहे होते हैं, अक्सर लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, उनके सवालों के जवाब दे रहे होते हैं। और अटैकर्स समटाइम्स CVs के अंदर मालवेयर अटैच करके एक कंपनी के HR डिपार्टमेंट को भेज देते हैं, और जब वो उसको ओपन करते हैं तो अल्टीमेटली दैट मालवेयर spreads across the organization laterally. Okay, so जैसे हम बात कर चुके कि ultimately the conclusion is कि advanced technologies always come with some definitely they have some benefits as well, but they definitely get our lives easier, but they have multiple threats, and those threats need to be catered while they are being developed. Before developing the solution, we need to also think of their cyber attack perspective, और जब भी हम कोई चीज़ डिज़ाइन करें तो उसके वर्स्ट केस को भी डेफिनेटली सोचना चाहिए कि अगर इन केस ऑफ ए साइबर अटैक हाउ वुड दिस पर्टिकुलर थिंग react. To protect your devices and data against cyber threats, you can adopt simple measures such as use the latest hardware and software. जैसे मैंने बताया कि स्पेक्ट्रा जैसे vulnerabilities जो हैं वो हार्डवेयर लेवल की हैं, जिसमें प्रोसेसर आपका vulnerable है. So what you can do is you can just upgrade और use the latest hardware, latest software. अपनी विंडोज़ को अपडेट रखें. आप जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, हम एडोब रीडर PDF रीडर यूज़ कर रहे हैं, उसको अपडेटेड रखें. आप माइक्रोसॉफ्ट सूट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो और वर्ड जैसे एक्सेल, पावर पॉइंट, इनको अपडेटेड रखें, क्योंकि बहुत सारी वनरेबिलिटीज़ हर वर्जन के अगेंस्ट आइडेंटिफाई हो रही हैं। तो लेटेस्ट वर्जन्स के अंदर एटलीस्ट पुरानी वनरेबिलिटीज़ नहीं होती, और डेफिनेटली न्यू अननोन तो हो ही सकती हैं, लेकिन पुरानी एटलीस्ट नहीं होती. सो यू आर ऑटोमेटिकली वाइपिंग आउट 99% ऑफ द वनरेबिलिटीज़ फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव. सो कीप योर सॉफ्टवेयर्स एंड हार्डवेयर अप टू डेट. और इसके अलावा अपने कंप्यूटर के अंदर मेक श्योर आप अपने कंप्यूटर में एंटीवायरसेस
इंस्टॉल करें, अपने फायरवॉल्स एट ऑल टाइम्स एक्टिव रखें फ्रॉम पर्सनल कंप्यूटर्स पर्सपेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से अगर आपकी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फायरवॉल नहीं है, डू इम्प्लीमेंट इट। अगर आप एंटीवायरसेस अप टू डेट रखें, हो सके तो परचेस्ड एंटीवायरसेस का इस्तेमाल करें। फ्री एंटीवायरसेस भी अच्छा काम करते हैं, बट परचेस्ड एक लेयर ज़्यादा आपको सिक्योरिटी की प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और आप अपनी साइबर हाइजीन का ख्याल रखें। साइबर हाइजीन से मुराद ये है कि आपका जो पासवर्ड है आपके किसी के साथ शेयर ना करें, रीयूज़ ना करें बार बार उसको, और थोड़े दिनों के बाद उसको चेंज कर लें। एज सिंपल एज दैट। आपका पासवर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि सिंपल हो, जो कोई गेस कर सके। लाइक प्रॉब्ली अक्सर लोगों का पासवर्ड उनकी डेट ऑफ बर्थ होती है, अक्सर लोगों का पासवर्ड उनके फ़ोन नंबर्स होते हैं, अक्सर लोगों का पासवर्ड उनका नाम और बीच में कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ या एक्सक्लेमेशन मार्क या स्टार और उसके बाद 1 2 3 होता है। सो डू नॉट यूज़ दीज टाइप्स ऑफ पासवर्ड्स को हर थोड़े दिनों के बाद चेंज करते रहें। और बेहतर ये है कि पासवर्ड्स आपको ऑब्वियसली याद करना एक नियरली इम्पॉसिबल चीज़ है। बाय द वे, इस बात से करने से पहले एक और बात करूँगा कि एक कॉमन पासवर्ड हर जगह मत यूज़ कीजिए। पासवर्ड्स याद करना ऑब्वियसली एक मुश्किल चीज़ है, बट फॉर दैट आई वुड रिकमेंड कि आप कोई पासवर्ड मैनेजर जैसे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें जिसमें आप अपने पास पासवर्ड्स स्टोर कर रहे हो, क्योंकि वो जो सॉफ्टवेयर है वो आपको 2-3 चीज़ों में हेल्प करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको पासवर्ड याद नहीं रखने पड़ेंगे। सेकेंडली, वो पासवर्ड हर टाइम आप उस पासवर्ड मैनेजर की वजह से आप रैंडम पासवर्ड्स रख सकते हैं। सो नो वन कैन एक्चुअली आस्क यू कि यार ये आपकी सर्विस का पासवर्ड क्या है, बिकॉज आपको खुद नहीं पता तो आप बताएंगे क्या। और वो पासवर्ड रैंडम होंगे, रिलेटिवली ज़्यादा सिक्योर होंगे। हमने बहुत सारे हैक्स इस तरह के देखे हैं जिसके अंदर आप किसी और सर्विस के ऊपर लॉगिन करते हैं, अकाउंट क्रिएट करते हैं। मे बी आप फॉर एग्जांपल आप कार्स के शौकीन हैं, तो आप कार्स की एक वेबसाइट के ऊपर अपने अकाउंट क्रिएट किया और वो कार्स की वेबसाइट जो थी वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, और उस कॉम्प्रोमाइज़ के नतीजे में आपका ईमेल, आपका नाम और आपका पासवर्ड लीक आउट हो गया। खुदा न खासा आपने अपना पासवर्ड रीयूज़ किया हुआ था जो आप मेन जीमेल अकाउंट के लिए इस्तेमाल करते हैं या हॉटमेल अकाउंट के लिए यूज़ करते हैं, तो उस हैक्ड डेटाबेस में से कोई पासवर्ड लेके अल्टीमेटली आपका जीमेल कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। और आपका जीमेल कॉम्प्रोमाइज़ होने का मतलब ये है कि आपकी वर्चुअली पूरी की पूरी साइबर लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, जिसमें आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन को अटैच रखते हैं, उसमें आपकी फ़ोटोज़ पड़ी हुई हैं, उसमें आपकी कॉन्टैक्ट्स पड़े हुए हैं, उसमें आपकी मैप्स की लोकेशंस हैं कि आप रिसेंटली कहाँ गए थे, वे आपकी गूगल सर्चेज़ हैं। यू हैव all your virtual life attached to your mobile phone as of these days। फिर उसके अलावा आपका फेसबुक आपके जीमेल के साथ अटैच्ड होता है, आपका इंस्टा अटैच्ड होता है, स्नैपचैट अटैच्ड होती है। सो एक छोटी सी मिस हैंडलिंग और थोड़ी सी सुस्ती की वजह से हम अल्टीमेटली अपना मेजर नुकसान कर सकते हैं। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि यू डू टेक केयर ऑफ़ योर साइबर हाइजीन। किसी के साथ ये चीज़ें मत शेयर करें, और जिनके साथ शेयर की हुई हैं प्लीज़ पासवर्ड चेंज कर लें। अपने हर अकाउंट के ऊपर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन डेफिनेटली ऑन कीजिए, और उसके नतीजे में अल्टीमेटली वो मतलब होगा ये कि खुदा न खासा अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ होता भी है, कोई किसी को पासवर्ड मिल भी जाता है, तो आप वो लॉगिन जब करेगा तो अल्टीमेटली आपको मोबाइल के ऊपर एसएमएस आ जाएगा कि ये पासवर्ड आप एंटर करेंगे तो सिस्टम में एंटर हो सकते हैं। सो दैट इज़ हाउ यू गेट टू नो कि आपका अकाउंट एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। और ये जो सेकेंड लेयर होगी ये आपको अल्टीमेटली आपके अकाउंट को प्रिवेंट भी कर रही होगी टेक ओवर होने से। So thank you so much. A little bit about ourselves. Once again, our achievements are 12 years of experience. We have done almost around 175 plus third-party assessments, and we have 95% satisfaction rate, and we have over resource pool of over 250 employees. Our resources are certified to ECPPT, OSCP, CEH, CHFI, and many more. CISA, CISM, CRISIS, and we are in multiple countries including Pakistan, USA, Saudi Arabia, UK, and Australia. Thank you all for having me over, and I'm open for questions and feedback. Thank you so much. Thank you. Can I have a question? Zamar Jafri here. Sure, sir, please.
जी बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, इट्स वंडरफुल टॉक आई मस्ट से। ये बताइए थैंक कि यू। जिस तरह हम लर्न कर रहे हैं तो हैकर्स भी लर्न कर रहे हैं। अब टू माय अंडरस्टैंडिंग नाउ द फ्यूचर अटैक्स विल बी ऑन एआई बेस्ड। They will यस। try to understand our patterns, how we score our things, and then they will have counter strategies on that. तो ये जो हमारी फिजिक्स है सारी, ये तो फिलहाल बेस कर रही है हमारे बिहेवियर के ऊपर या अटैक पैटर्न के ऊपर। जब ये मशीन्स लर्न कर जाएंगी हैकर्स की या डार्क वेब की, उस सिनेरियो को कहाँ देखते हैं? वहाँ वहाँ पे हम कैसे उसको काउंटर करें? फिर तो मुकाबला हमारा मशीनों के साथ होगा। तो क्या हम एज ए ह्यूमन बीइंग मुकाबला कर सकते हैं उनके साथ? सो दैट इज़ वेरी ट्रू। हम एज ह्यूमन बीइंग ह्यूमन कैपेसिटी के अंदर रहते हुए तो शायद इनका मुकाबला इतना ज़्यादा उस लेवल पे ना कर सकें जब हम ऑटोमेटेड मशीन लर्निंग किस्म के अटैक्स देख रहे होंगे। लेकिन उसके काउंटर मेजर्स हम डेफिनेटली कर सकते हैं। वो टाइम से पहले करने होंगे, जिसमें हम थ्रेट इंटेलिजेंस गैदर करें। थ्रेट इंटेलिजेंस में जो कि अभी भी प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे अवेलेबल हैं जो कि डार्क वेब से मल्टीपल लोकेशन से थ्रेट इंटेलिजेंस गैदर करते हैं कि कौन सा अटैकिंग ग्रुप किस तरह से अटैक कर रहा है, और उससे रिलेटेड पहले से ही हम डिफेंसेस क्रिएट करके रख लें। या फिर हमें ये भी पता चलता है साथ साथ बहुत सारे मेन स्ट्रीम सर्च इंजन्स के अलावा बहुत सारे डार्क वेब के सर्च इंजन्स हैं, तो उनकी सर्चेस से भी थ्रेट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस को अंदाज़ा हो रहा होता है कि किस तरह के अटैक्स परफॉर्म करने जा रही हैं ऑर्गेनाइजेशंस, अटैकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। मे बी वो कोई सीवीई जो कि माइक्रोसॉफ्ट की भी रिसेंटली आई है ऑफिस से रिलेटेड, उसको सर्च कर रही है, तो दैट मीन्स के उससे रिलेटेड उनको पहले से ही आईओसीज बना के रखने हैं। आईओसीज मीन्स इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज या यारा रूल्स बना के रखने हैं। सिमिलरली हम अगर डिफेंसिव पर्सपेक्टिव से हमें प्रोएक्टिव होंगे तो हम डिफेंड कर सकेंगे। रिएक्टिव अप्रोच जिसमें फोरेंसिक्स में हम बाद में इवेंट लॉग्स बैठ के देखते हैं, यू आर वेरी राइट अबाउट इट कि हम उस पर्सपेक्टिव से डिफेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो मैसिव बूम आने वाला है इस पूरी चीज़ के अंदर, वी आर अनप्रिपेयर्ड फॉर इट, एंड स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान perspective वी आर वेरी अनप्रिपेयर्ड फॉर इट। मेरा एक बस क्वेश्चन और होगा आपसे। जी जी। आपने आईओटी की बात भी की थी अपनी टॉक में। बट टू माई अंडरस्टैंडिंग आई थिंक नेक्स्ट 6 मंथ और सो हमारे 1 साल के अंदर तमाम घरों में, तमाम फैक्ट्रीज में, तमाम इदारों में आईओटी डिवाइस लगी होंगी। एवरेज 8 से 10 डिवाइस एक घर में होंगी। यू कैन फिगर आउट के बाकी जगहों पे क्या होगा। Agreed. करंटली जो मैं देख रहा हूँ तो हम स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहे। जैसे लॉरा वैन की अगर मैं बात करूँ तो जो पीटीए ने इशू की है अभी लॉरा वैन की पॉलिसी, वो जब मैंने वो बैंडविड्थ देखी हैं तो वो डिफरेंट हैं, हमारी बाहर के स्टैंडर्ड्स डिफरेंट हैं। तो ये जो Yes. मैं नॉलेज गैप देख रहा हूँ आईओटी के अंदर, कि मतलब मेरे हिसाब से जो अगले अटैक्स आएंगे रैंसमवेयर के, वो हमारे कारखानों के ऊपर आएंगे, हमारे कारखाने हैक होने शुरू हो जाएंगे। तो इसके ऊपर आप क्या सजेस्ट करते हैं? हमें कैसे पूरे निज़ाम को लेकर चलना चाहिए ताकि ये जो एक आने वाला तूफान है इसको रोक सकें? सर इसके अंदर ऑनेस्टली स्पीकिंग दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो उन लोगों पे जिम्मेदारी आती है जो कि आईओटी डिवाइसेस बना रहे हैं एंड दे नीड टू बी लर्नड। उनके तरफ थोड़े से प्रॉब्लम्स ये हैं कि मोस्टली जो आईओटी की डेवलपमेंट करते हैं दे आर मोस्टली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स आर ऑब्वियसली वेरी लर्नड इन देयर फील्ड, बट फ्रॉम सिक्योरिटी परस्पेक्टिव उनका posture जो है वो ऑब्वियसली डिफरेंट होता है, बिकॉज दे आर नॉट द वंस टू बी ब्लेम्ड ऑब्वियसली। ये ऑर्गेनाइजेशंस पे जिम्मेदारी आती है कि वो सिक्योरिटी के रिसोर्सेज हायर करें ताकि वो डेवलपमेंट फेज़ के अंदर ही सिक्योर डेवलपमेंट इन्फोर्स करवा सकें। दूसरा एस्पेक्ट ये आता है कि वी नीड टू हैव ए नेशनल थ्रेट रिस्पॉन्स टीम और साइबर रिस्पॉन्स टीम जो कि इस तरह की चीज़ों को एक सेंट्रल पॉइंट पे आइडेंटिफाई करके वहाँ से रिस्पॉन्स जनरेट कर सके। फॉर एग्जांपल खुदा न खास्ता हमारी किसी एक इंडस्ट्री के ऊपर एक तरह का अटैक आता है तो हमारी एक सेंट्रल बॉडी को ये चीज़ नोटिफाई हो कि जी इस जगह पे अटैक हो चुका हुआ है, ताकि वो तमाम उससे रेलेवेंट बॉडीज़ को पहले से नोटिफाई कर सके कि जी बी प्रिपेयर्ड, दीज आर द स्टेप्स दैट यू नीड टू टेक टू सिक्योर अगेंस्ट इट, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो बी अ विक्टिम ऑफ दिस एंड दिस अटैक। जैसे आजकल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तमाम बैंक्स को इस तरह के लेटर्स इशू करता रहता है, एडवाइजरीज इशू करता रहता है कि जी ये अब अटैक आ रहा है, अब ये अटैक आ रहा है, यू नीड टू पैच दिस।
अल्टीमेट इन चीज़ों के बगैर और इस प्रोएक्टिव अप्रोच के बगैर वी कैन नॉट सस्टेन दी cyber attacks, and they are going to be very brutal, and they are going to cause us very huge amount of financial problems. मैं क्विक कमेंट ही करूँगा आपकी बात पे कि आई एम द स्टेक होल्डर। ये जो साइबर विंग है ये मैंने बनाया था FIA का, अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से मैं शोर जी। डाल रहा था। अभी मैं जो काफ़ी शोर डाला है इसके ऊपर, तो पॉलिसी तो इशू हो चुकी है इसके ऊपर अभी साइबर सिक्योरिटी की। एक्चुअली हमने फ़र्क नहीं महसूस किया पिछले कई सालों में कि साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी में क्या फ़र्क है। चलिए थैंक गॉड पॉलिसी तो आ गई है, उनकी पोस्टें भी अनाउंस हो गई हैं नेशनल सर्ट की। जो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि एक तो होती है ऑर्गेनाइजेशन सर्ट, फिर सेक्टोरियल सर्ट और फिर नेशनल सर्ट। चूँकि नेशनल सर्ट नहीं थी इसलिए बाकी भी चीज़ें नहीं बनी। चलें, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू मच फॉर योर टॉक। ओवर टू Thank you अदर so much. पर्सन। थैंक यू। सर मेरा एक आपसे क्वेश्चन है। जी जी। आई बिलोंग टू सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस फील्ड। सो मुझे OWASP टॉप 10 का थोड़ा सा आइडिया है कि टॉप 10 जो हमारी डे टू डे रूटीन में एप्लीकेशन टेस्ट हो रही होती हैं तो हम उसके अंदर OWASP टॉप 10 की जो प्रैक्टिसेस हैं वो समहाउ देख रहे होते हैं। लेकिन मैं अगर देख रहा हूँ कि लास्ट 4 ईयर से OWASP ने अपनी कोई लेटेस्ट टॉप 10 वही चलती आ रही हैं और अब इतनी ग्रो कर गई है, तो मुझे फर्दर लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें या किस एरिया को फोकस करना चाहिए? देखिए आपका क्वेश्चन सही है वैसे, लेकिन अभी बिल्कुल रिसेंटली OWASP 2021 भी लिस्ट आ गई हुई है आ गई, ओके, OWASP टॉप 10 की। हाँ, तो राइट। नो डाउट दे हैव अपडेटेड देयर लिस्ट लिटिल बिट, लेकिन उसमें मेजॉरिटी चीज़ें वही हैं। आपको अगर अपनी इंफॉर्मेशन को इन्हांस करना है तो आप इससे रिलेवेंट ये चीज़ें ज़रूर देखें कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ जिस पे भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है उससे रिलेवेंट कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि स्टैंडर्ड से डिविएट कर रही हैं, बिकॉज व्हेन यू डिविएट फ्रॉम स्टैंडर्ड्स देन देयर आर प्रॉब्लम्स, मल्टीपल प्रॉब्लम्स। OWASP टॉप 10 इसलिए सेम रहता है क्योंकि एक्चुअल अटैक्स उसी पैराडाइम के इर्द घूमते हैं। फॉर एग्जांपल क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है, वो नो मैटर व्हाट क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिफिकल्ट तरीके से भी कर रहा है तो अल्टीमेटली वो अम्ब्रेला क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का ही आएगा। लेकिन आपको ये देखना है कि किस तरह से अटैकर्स क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इसके लिए अगर आपकी लर्निंग के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो आई वुड रिकमेंड कि आप मुख्तलिफ medium.com के ऊपर सिक्योरिटी राइटअप्स हैं बग बाउंटी हंटर्स के, जो कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करते हैं इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक एक्सेट्रा। तो आप उनको Okay. ज़रूर रीड करें कि हाउ डिड दे एक्चुअली हैक इनटू सच ह्यूज ऑर्गेनाइजेशंस जो आई एम श्योर आपसे कहीं ज़्यादा इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं और फिर भी उसके बावजूद भी वो हैक करने में कामयाब होते हैं। तो वो हैकर्स उनके बारे में राइटअप्स लिखते हैं और उनके राइटअप्स के नतीजे में फिर रिस्पॉन्स जो उनका ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आता है वो भी डिटेल में लिखा होता है और सोल्यूशन भी लिखा होता है। तो वो चीज़ें अगर आप रीड करते रहेंगे then definitely you will be सर learning a ये lot आप more. साइट बताएंगे दोबारा से, कौन सी साइट आपने बताई है? medium.com के ऊपर इट्स अ स्मॉल मीडियम। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट जिस पे राइट, लोग अपने खुद से ब्लॉग्स लिखते हैं। medium.com पे आपको राइटअप्स मिल जाएंगे। राइट, थैंक यू सर, थैंक यू सो यू मच। मोस्ट वेलकम। Thank you, sir. Thank you so much. थैंक यू। Sir, we have a question in the chat. As you said that hackers use Bitcoin for money demanding, as Bitcoin works on blockchain, so does it mean blockchain somehow increases cybersecurity risk? देखिए ब्लॉकचेन इज़ अ टेक्नोलॉजी जो कि हम टेक्नोलॉजी को कभी भी ब्लेम नहीं कर सकते, हम टेक्नोलॉजी के मिसयूज़ को ब्लेम कर सकते हैं। उस टेक्नोलॉजी की एक यूजेज क्रिप्टो करेंसीज़ है और उसके बहुत सारी और भी यूजेजेस हैं जो कि बहुत बेनिफिशियल हैं, जो कि कंट्रीज़ को इनफैक्ट ऑप्ट करने चाहिए। वन ऑफ देम इज़ क्रिप्टो करेंसीज, और क्रिप्टो करेंसीज में भी स्पेसिफिकली वो करेंसीज जो कि एनोनिमस रहने को सपोर्ट करती हैं। येस, दोज करेंसीज हैव एक्चुअली शिफ्टेड आवर पैराडाइम फ्रॉम सिक्योरिटी परस्पेक्टिव, बिकॉज उसकी वजह से फाइनेंशियली मोटिवेटेड हैकर्स इस पूरी फील्ड के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इन होना शुरू हो गए। हमने तो ऐसा भी देखा है कि कई नेशन स्टेट एक्टर्स लेटर ऑन रैंसमवेयर ग्रुप्स बन गए क्योंकि शायद उनकी गवर्नमेंट्स उनको पे करना कम हो गई, या बिकॉज दे वर अल्टीमेटली हैकर्स, उनको तमाम चीज़ें आती तो हैं
they have all the required tools and techniques. Ultimately they wanted money और गवर्नमेंट नहीं दे रही तो फिर उन्होंने ransomware को opt कर लिया. So yes, cryptocurrency, specifically Bitcoin, has changed security paradigm. Thank you, sir. Before heading forward, I would request the participants to please fill out the attendance sheet shared in the chat. So अगर आप मुझे अलाउ करें तो आखिरी जो सवाल था मैं जवाब में सिर्फ ये सही कहा हमारे इंस्ट्रक्टर ने कि बिटकॉइन और ब्लॉक जो क्रिप्टो करेंसी दैट इज वन ऑफ द यूज केसेस ऑफ ब्लॉकचेन. लेकिन अभी रिसेंटली को 3 से 4 हफ्ते के अंदर हमारी कोर्ट्स ने अलाउ करना शुरू कर दिया है क्रिप्टो करेंसीज को. वो सुओ मोटो नोटिस ले रहे हैं कि ये क्यों अलाउ नहीं कर रहे. तो इसके ऊपर हमने कुछ काम शुरू कर दिया है FIA, NAB और गवर्नमेंट के साथ मिलके कि हमें क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसीज को रेगुलाइज करने के लिए लॉस बनाने चाहिए, इसका फेयर यूज़ करना चाहिए. अब ये इसको ख़तरा मत समझें, ये अब ज़रूरत बन गई है मेरा ख्याल है हमारी. और इसमें किसी का कोई इंटरेस्ट हो काम करने का तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी और मैं इंशाल्लाह आपको उस ग्रुप में शामिल करूँगा. देयर आर 150 प्रोफेशनल्स जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम जो भी चीज़ सामने लाएंगे बेहतर होगी. थैंक यू वेरी मच. Thank you. thank you, sir. So if anyone from our participants have any question, you can ask. You can either unmute yourself or you can ask in chat. सर अगर कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा तो मेरा एक और क्वेश्चन है कि सिक्योरिटी जी. टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह मेरा QA की फील्ड है तो कुछ सर्टिफिकेशन आप कौन से सजेस्ट करते हैं कि वो करनी चाहिए. जो सर्टिफाइड एथिकल हैकर की है वो तो उसमें नेटवर्क भी आ जाता है. मेरा मेनली फोकस जो वेब एप्लीकेशंस और मोबाइल एप्लीकेशंस है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो सर्टिफिकेशन कौन. स्पेसिफिकली अगर आप इन चीज़ों की फील्ड की तरफ जाना चाहते हैं, सिक्योरिटी की तरफ जाना चाहते हैं, तो 2 सिक्योरिटी सर्टिफिकेशंस हैं. एक है ऑफेंसिव सिक्योरिटी की तरफ से ऑफेंसिव सिक्योरिटी वेब एक्सपर्ट OSWE. The other one is from eLearn Security. eLearn Security के certified professional web expert ECPWX. दो हैं OSWE and the other one is Right. eLearn Security के certified professional web expert. Right. EVAP. Let me just check it. Just a moment. Certification. Yes, the certification is EVAPT. E is small, WAPT, Web Application Penetration Tester. So ये specifically web applications के इर्द गिर्द certifications हैं. So they are very good. और अगर आप इनका कोर्स ले लेते हैं तो I'm pretty much sure कि आप applications की security ये जो अच्छी तरह सॉरी से कर लास्ट वाली आप स्पेल दोबारा से करते हैं. So you can also WAPT. type in chat. Sure. Good. EVAPT. मैं टाइप भी कर देता हूँ. Thank. All right. So, any other questions, please? Sir, I don't think we are going to have further questions. So let's sum up the discussion here. Thank you so much for sharing your experience and a solid amount of information with us. I'm pretty sure the audience now would have a detailed knowledge of what is cybersecurity and what kind of threats could be faced. Thank you for making these crucial trends clear to us. And I would also like to thank Sir Hadi on behalf of my whole Y team for recommending you. It was a very fruitful and beneficial session. Thank you for being here. Thank you. Thank you so much. Take care. Thank you आदि. बहुत शुक्रिया आदि आपका. So kind. Thank you. Thank you. Thank you, Swami. Thank you everyone for joining us today. Right. You're welcome.